نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والأوابين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مرکبات ہم نے شروع کیے تھے اور مرکبات کے اندر ہم نے سب سے پہلے مرکب تام کو کیا اور اس کے بعد مرکب تام جس کو جملہ کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے مرکب ناقص شروع کی. مرکب ناقص میں ہم نے سب سے پہلے مرکب توصیفی، ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صرف بیان کرتا ہے، جس چیز کی صرف بیان کی جاتی ہے اسے موصوف، جو کچھ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اس کی صرف. موصوف و صرف میں عربی زبان میں موصوف پہلے آتا ہے، صرف بعد میں آتی ہے. ترجمے میں صرف پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے. مرکب توصیفی میں اصل اہمیت موصوف کی ہے، صرف اس کے تابع ہوتی ہے. مرکب توصیفی جملے میں مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے، خبر بن کے بھی آ سکتا ہے. مبتدا بن کے آئے گا تو معرفہ ہوگا، خبر بن کے آئے گا تو نکرہ ہوگا. دوسرا مرکب ہم نے پڑھا تھا مرکب اشاری. مرکب اشاری ایسا مرکب جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں. اسماء اشارہ جس کی طرف کیا جاتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے مشار الیہ بھی لازم معرفہ ہوگا. مرکب اشاری میں اصل اہمیت مشار الیہ کی ہے، اشارہ جو ہے وہ مشار الیہ کے تابع ہوتا ہے. مرکب اشاری جملے میں مبتدا بن کے آتا ہے، اس لیے ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا سر پلیز، ذرا ایک منٹ دیجیے گا، میرے پاس کوئی کال آ گئی. سوری جی، معذرت چاہتا ہوں. مرکب اشاری جملے کے اندر مبتدا بن کے آتا ہے. صرف مبتدا بن کے اس لیے آتا ہے کہ مرکب اشاری کیونکہ پورے کا پورا معرفہ ہوتا ہے. تیسرا مرکب جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا مرکب اضافی. مرکب اضافی ایسا مرکب جس کے اندر ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے، تعلق جوڑا جاتا ہے. مرکب اضافی بہت امپورٹنٹ، قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. کوئی ایسی آیت نہیں جس میں مرکب اضافی استعمال نہ ہوتا ہو. مرکب اضافی میں جس چیز کی نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس چیز کی طرف دی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوتا اور جس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے.
اعراب ہلکا کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ وہ اسما جن کے اوپر تنوین آتی ہے اس کی تنوین کو ہٹا دیا جاتا ہے. تنوین کن اسما پہ آتی ہے؟ واحد منصرف پہ آتی ہے، جمع مکسر پہ آتی ہے، اور واحد مؤنث اور جمع مؤنث سالم پہ آتی ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ وہ اسما جن پہ نون اعرابی داخل ہوتی ہے. نون اعرابی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو مثنیٰ کے تمام صیغوں میں جو نون آتی ہے، آنی یا عینی، اس کی نون، یا جمع مذکر میں جو اونا یا اینا میں جو نون آتی ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. اس نون اعرابی کو ہٹاتے ہیں. مضاف الیہ کی لازمن شرط، لازمن وہ حالت جر میں ہوگا اور معرفہ ہوگا. مضاف الیہ جو ہے وہ بعض دفعہ ضمائر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. جب ضمائر کی صورت میں آتا ہے تو ایسی صورت میں ضمائر کے دو چارٹ ہم نے پڑھے تھے. ایک حالت رفع کا چارٹ تھا، جو حالت رفع ہے، معرفہ ہے، مبتدا بن کے آتا ہے، اور ایک حالت جر یا نصب کے چارٹ ہم نے پڑھے تھے. حالت نصب اور جر کے جو چارٹ ہوتے ہیں یہ ایک ہی ہوتے ہیں اور ان کو اٹیچ ضمائر کہتے ہیں. یہ ضمائر جو ہے وہ اٹیچ ہو گیا. مرکب اضافی جملے کے اندر مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے اور خبر بن کے بھی آ سکتا ہے. گو کہ مضاف جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا الف لام بھی نہیں ہوتی اور اعراب بھی ہلکا ہوتا ہے. لیکن ایسا اسم جو کہ جس کی نسبت کسی نکرہ اسم کی نسبت کو اگر معرفہ اسم کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر اس کو معرفہ بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اس لیے اس کو مبتدا بنا کے بھی لا سکتے ہیں اور خبر بنا کے بھی لا سکتے ہیں. چوتھا اور آخری جو مرکب ہم نے کیا تھا وہ کیا تھا ہم نے مرکب جاری. مرکب جاری ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں حروف جارہ استعمال ہو. حروف جارہ کرتے کیا ہیں کہ اپنے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. اسم کی حالت جر میں جانے کی صرف دو ہی وجوہات ہیں اور دونوں وجوہات آپ کے پاس آ گئی، دونوں پڑھ لیں. پہلی وجوہات تھی کہ وہ مضاف الیہ ہو اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر حرف جارہ استعمال. حرف جارہ کی کل تعداد جو ہے وہ 17 ہے. قرآن مجید میں صرف 11 ہیں، اس لیے ہم نے وہ 11 آپ کے ساتھ پڑھے تھے. وہ حروف جارہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے کون کون سے. ہر حروف جارہ کا اپنا ایک معنی ہے، صرف ایک ہی کام کرتا ہے کہ وہ اپنے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے. بعض دفعہ آنے والا اسم جو ہے وہ مفرد ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ مرکب ہوتا ہے، اور عموماً آپ کو اس میں مرکب اضافی ہی ملتا ہے. تو مرکب جاری کی بھی استعمال اتنا ہی ہے جتنا مرکب اضافی کا استعمال ہے قرآن مجید. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کا پہلا سیکشن اسم کے حوالے سے اختتام پذیر پہنچتا ہے. مجھے بتائیے اب تک کے حوالے سے کسی کے پاس کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے تو پوچھیے پلیز. جی جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ جو اردو سے نہیں عربی سے اردو میں ترجمہ جو کرنا ہوتا ہے اس کی ترکیب میں مجھے کافی مشکل پیش آ رہی ہے. تو مثلاً 30واں جو تھا ہمارا سوال نمبر 2 کا آخری، هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، تو یہ اس میں ترکیب کیا ہوگی؟ جیسے آپ ابھی ایک چیز آپ کو میں بتا دوں. بات یہ ہے کہ بیسک رول کے حساب سے اگر آپ چلتے ہیں نا، بیسک رول کے حساب سے، بیسک رول تو آپ سے یہ کہتا ہے کہ پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں، پھر خبر کا ترجمہ کریں، پھر آپ جو ہے نا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آتی ہے اس کے ترجمہ کریں. لیکن بعض دفعہ کچھ چیزیں جو ہیں مقدم بھی ہوتی ہیں، مؤخر بھی ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھیں. دوسری چیز کیا ہے کہ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ ترجمے جو ہے نا وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ترجمہ جس کو ہم کہتے ہیں لفظی ترجمہ، ایک ترجمہ ہوتا ہے مانوی ترجمہ. اب اس کے اندر آپ مفہوم کو کس طرح سے لے کے آتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، میں اگر آپ کو کہوں اولادکم، میں اگر آپ سے کہوں اولادکم، آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ تمہاری اولاد. اب مجھے بتائیے جو تمہاری اولاد آپ نے جو ترجمہ کیا، اولادکم، مجھے بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کم یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اولاد یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس کا ایک ترجمہ تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ تمہاری اولاد ہے، جی جی ہے نا، لیکن آپ اس کا ترجمہ تمہاری اولاد بھی کرتے ہیں. تو یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے بعض دفعہ کے مفہوم کو لانا کس طریقے سے، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کو میں نے سمپل کہا اور آپ نے سمپل اس کا آنسر جو یکمش دیا وہ یہی دیا کہ تمہاری اولاد.
हालांकि उसूलन आपको तर्जुमा क्या करना चाहिए था, तुम्हारी औलादें, जी लेकिन जुमले के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तुम्हारी औलाद का मफहूम भी चलेगा, यानी तुम्हारी औलाद के अंदर जो है ना, या में जो है ना, वो तुम्हारी को आपने प्लूरल दे दिया तो ऑटोमेटिकली आपने औलाद को वाहिद भी दिया तो वो प्लूरल में ट्रीट हो गया, जी ठीक है ना। और तुम्हारी, तो ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी मैं आपको कोई पैटर्न नहीं बताना चाह रहा कि इसके तर्जुमे कैसे होंगे जुमले के हवाले से, लेकिन जी मैंने जी आपको मुरक्कबात के हवाले से बता दिए, ठीक है ना। जी क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं अभी डिस्कस करूंगा तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, तो बस अच्छा अच्छा टाइम गुजर जाएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको सामने वो रख दूंगा, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। मुरक्कब के हवाले से तर्जुमा आपके जहन में होना चाहिए कि मुरक्कब तौसीफी का पहले सिर्फ फिर मौसूफ, फिर मौसूफ जी पहले सिर्फ फिर मौसूफ। अच्छा, वो जो आपने आखिरी वाली जो तीसरा सवाल था, वो बेसिकली सूरह ज़ुखरुफ की आयत है, सूरह जी ज़ुखरुफ की आयत है, और उसके अंदर आप देखें उसमें था अला रजुल, और उसकी सिर्फ जो है अजीमन बाद में आ रही थी, जी वो और मैंने बाद आ रही नोट थी। की थी वो बात, रजुलिन और अजीमिन एक बिल्कुल एक ही पैटर्न पे थे ना। हाँ, तो आप तो मुझे बताएं ना, आपको अजीमिन क्या लगा वहां। अजीमिन जो था वो रजुलन की सिर्फ थी। जी हाँ बिल्कुल, मगर वो समझ ही नहीं आया मैं फिट कहाँ करूँ, तो अब वो आप देखें, अब जब आप उसका तर्जुमा करेंगी तो आप रजुल का तर्जुमा डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि रजुल का तर्जुमा आप होगा रजुल मौसूफ और अजीम इन सिर्फ। तो आप जी उसको कहते हैं अजीम आदमी, कोई एक अजीम आदमी है ना, या बड़ा आदमी। क्यों, अल्लाह ताला उस बेसिकली ये जो आयत थी, वो आयत इस तरह से मुझे आयत अभी याद नहीं आ रही, वक़ालू लौला उनज़िला, या वक़ालू लौला उनज़िला नज़्ज़ला, ऐसी कुछ है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, कि वो काफरों का वो एक शर्तिया बयान था कि क्यों नहीं ये कुरान उतारा गया इन दो बस्तियों में किसी बड़े आदमी के ऊपर। जी ऐसे ही है ना। अब जी वो बड़े जी दो बस्तियां क्या थी, दो बस्तियां आपको मालूम है कौन सी थी? सर मुझे नहीं मक्का और मदीना। नहीं नहीं नहीं, मक्का मदीना नहीं, मक्का और ताइफ। ताइफ जी मक्का और ताइफ। और बड़ा आदमी कौन था यहाँ? बड़े आदमी से क्या मुराद थी? यहाँ बड़े आदमी से मुराद वलीद बिन मुगीरा भी था, जी या बड़े जी आदमी से मुराद अबू जहल भी था। बिल्कुल ये सारे सरदार थे ना, बड़े बड़े सरदार थे, मानदार सरदार थे, इन पे क्यों नहीं नाजिल हुआ? तो सिर्फ जो है ना, जहन में इन चीजों को रखें, वो मफहूम इंशाल्लाह आते रहेंगे, बेफिक्र हैं, छोड़ दें। क्योंकि ये बेसिकली देखने में तो अलकरियतैनी अजीमिन तो बन ही नहीं रहा वो सही, तो इसलिए खैर जजाकल्लाह। मिल जाएगा, बन जाएगा, बेफिक्र है, सब बन जाएगा। इसके अलावा पूछें कोई और चीज नहीं है इंशाल्लाह ताला। चले जी, एक सवाल मेरी तरफ से भी है। अस्सलाम जी सर, वालेकुम। हुक्म। एक जुमले में ये जो हमने आप एक्सरसाइज थी उसमें 3 मुरक्कबात तो आए हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि 4 के 4 मुरक्कबात भी एक जुमले में आ सकते हैं या आते हैं? देखिए, आ सकते हैं। आपको पता है कि कुरान मजीद में जो सबसे तवील मुरक्कब आया है ना, मतलब आपका पहले सवाल जरा मुझे बताएं कि 3 मुरक्कबात से क्या मुराद है, कि यानी मुरक्कब इजाफी तीन इकट्ठे। यानी अभी हमने इकट्ठे मुरक्कब इजाफी आया है, इशारी और तौसीफी तो 3 हमने किए हैं। ये जो हाँ, उसमें कोई मसला नहीं, वो आपको कुरान मजीद में ऐसी चीजें मिल जाएंगी। इसमें मुरक्कब जारी मिसिंग था, तो ये मेरा था कि चारों के चारों जारी तो मजीद मौजूद है ना। अला रजुलिन अजीमुन, तो अला तो है वो जारा हो गया, 11 और हो गया। रजुलन अजीमुन जो है सिफ्त हो गया, जी जी और हाजिल कुराना जो है मुरक्कब इशारी हो गया। जी जी तो आपको इसके अंदर 3 मुरक्कबात तो मिल ही गए थे इसमें। बिल्कुल। तीन तीन तो वो मैं कह रहा हूँ ना, मेरा क्वेश्चन है ये है कि चारों के चारों भी आते हैं, हो सकते हैं इकट्ठे? सर बिल्कुल आ सकते, कोई रुकावट नहीं है इसमें, अच्छी इसमें कोई रुकावट नहीं। थैंक यू। चले, मैं आपसे कहता हूं,
جی میں آپ سے کہتا ہوں قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے. جی کون بتائے گا؟ نگہت جی آپ بتائیں گی؟ مجھے 1 منٹ سوچنے کا ٹائم دیں. سوچیے گا بعد میں, صرف ہوا کا کیا نام ہے بتائیے, سوچوا ہم آپ کو دیں گے ڈائریکٹ. آپ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے, یہ مرکب لگ رہا ہے کہ یہ آپ, سوری مرکب تو ہے ہی, یہ مجھے بتائیے یہ تام لگ رہا ہے کہ ناقص لگ رہا ہے؟ سر میں ابھی اس ٹاپک تک میں ابھی پہنچی نہیں ہوں, لیکن میں اس کو بس ٹرائی کر سکتی ہوں. کرے کوشش ہی کے تو پیسے ہیں, ہم پیسے ہی کوشش کے لیتے ہیں. ہدل للناس آئے گا. نہیں میں ابھی آپ سے ترجمہ تو پوچھ ہی نہیں رہا, میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس ٹرانسلیشن کو, اردو ٹرانسلیشن ہے نا, جی اس اردو ٹرانسلیشن کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ کو بات مکمل لگ رہی ہے کہ نامکمل لگ رہی ہے, یہ مجھے یہ نامکمل لگ رہی ہے. نامکمل ہے, کیوں؟ اس میں کیا چیز نامکمل لگ رہی ہے آپ کو؟ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے, یا میں اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتا تھا قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے. نامکمل تو نہیں ہے, لیکن آئی تھنک اسٹرکچر آف سینٹینس صحیح نہیں ہے اردو کے لحاظ سے. اچھا اردو کے لحاظ سے اسٹرکچر نہیں, چلے اسٹرکچر کیسے ہو جاتا, کیا کر دیتا ہمیں؟ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے. چلیں ایسے کر دیتے ہیں, جھگڑا ختم کر دیتے ہیں, آپ خوش رہے, یہ لیں اس کو ایسے کر دیتے ہیں, قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے, یہ لیں آپ حکم کریں سر. انفارمیشن ہے. چلیں آپ مکمل ہیں. جی چلیں اب آپ نے, اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا چیز ہے, یہ مرکب تام ہے. کیا چیز ہے یہ مرکب ہے جاری. نہیں دیکھیں مرکب دو ہیں, ایک ہے مرکب ناقص, مرکب ناقص کہتے ہیں اس کو جس میں بات واضح نہ ہو, انکمپلیٹ ہو. ایک ہوتا ہے مرکب تام جس کے اندر بات کمپلیٹ ہو. ابھی آپ نے اس کی کریکشن کرا کے مجھے بتائیے اب یہ بات کمپلیٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جی کمپلیٹ ہے. اب تو کمپلیٹ ہے, جب بات کمپلیٹ ہوگی تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ مرکب تام کہلائے گا, مرکب تام کہلائے گا. مرکب تام یعنی جملہ کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ جملہ. مرکب جملہ کہلائے گا. کیونکہ اور جملے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ اس جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں, اور جو فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. کیونکہ ہم نے شروع اسم کیا ہے تو ہم جملہ فعلیہ کی تو بات ہی نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ تام ہے, یہ پورا جملہ اسمیہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ سر میں نے یہ ابھی تک اس لیکچر تک میں پہنچی نہیں ہوں, لیکن میں اچھا چلے ٹھیک ہے, پھر آپ غور سے سنیں, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ غور سے سنیں. سلیم صاحب جی السلام علیکم. آپ نے تو لیکچر سنے ہیں نا سارے, اور دیکھے بھی ہیں؟ سنے تو ہیں جی. دیکھے بھی جی سر, یہ تو طے ہو گیا کہ مرکب تام ہے, بالکل جی. جملہ. اب ہاں مجھے جی, اس کے مجھے حصے بتا دیں. اس میں جو قرآن ہے وہ مبتدا ہے, قرآن مبتدا ہو گیا, زبردست. اور انسانوں کے لیے ہدایت ہے یہ خبر ہو گیا. پورے کا پورا نہیں ہاں چلیں, مطلب اس طرح سے شاید ہے تو ہدایت ہے خبر ہو گیا. ہدایت خبر ہو گیا. ہاں جی, تو انسانوں کے لیے کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا مرکب جاری. نہیں ہاں چلے مرکب جاری, چلے ہاں میں نے مرکب جاری کر دیا, ٹھیک. جملہ اسمیہ, جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ مبتدا خبر, اور اس کے بعد جو کچھ رہ جائے اس کے بعد, جی مبتدا خبر جو کچھ رہ جائے اس کے بعد بنائیے جملہ. اچھا, مبتدا کا قانون کیا ہے؟ کہ مبتدا پہلے آئے گا. نہیں, مبتدا اور کا قانون کیا ہے؟ وہ ہوگا
मारफा होना चाहिए, मारफा होगा, मारफा मारफा होगा। होगा और हाँ जी, मारफा होगा और हालत रफा में हो। हाँ जी। तो बनाइए अल तो अल कुरानुन, अल कुरान, अलिफ लाम जग जाएगा तो फिर तो अच्छा वो नहीं, हाँ जी वो तो नहीं, अलिफ लाम से तो नहीं हो जाएगा जी। अल कुरानु अल कुरानु हिदायत, ठीक है। हिदाया, हिदाया हिदायत नहीं, इसको कहते हैं हुदन। अब मैं एक चीज आपको हुदन। बता दूं यहाँ से, हुदन अच्छा, ये लिखा इस तरह से जाता है, इसमें दो जबर के साथ तनवीन है और दो जबर है, ठीक है। अब एक सवाल आ सकता है कि इसको मैंने खबर लिया है, इसको मैंने खबर लिया है, लेकिन इसके ऊपर तो दो जबर आ रहे हैं और खबर जो है वो तो हालत रफा में होनी चाहिए। तो ये बना कैसा है, इसको छोड़ दें भी आप, ये बना कैसा है इसको छोड़ दें भी आप, इसको कहते क्या है इसको भी छोड़ दें भी आप। ये बना कैसे है इसको भी छोड़ दें, इसको कहते क्या है ये भी छोड़ दें। ये जब उसका वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा। हुदन है, ये समझ लें कि हुदन इसी हालत में लिखा जाता है। हुदन की तीनों हालतें, हालत रफा हो, हालत नसब हो, हालत जर हो, ये सब की सब क्या कहलाएंगी, ये मबनी तरह से लिखा जाएगा। ये कैसे लिखा जाएगा सर, ये मबनी की तरह, ये मबनी की तरह लिखा जाएगा, अच्छा ठीक है जी। और ये जी। हुदन इसी तरह से लिखेंगे। ये बना कैसे है, इसके पीछे क्या चीज है उसको छोड़ दें, ये इसका एक नाम है खास, लेकिन वो नाम आपके सामने लेके अभी आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता, इसको आप अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, बस ये आप ध्यान में रखें कि ये इसम है, ठीक है। ठीक है, जी तो इंसानों के लिए तो लिन लिन्नासी, लिन्नासी, इंसानों के लिए क्या बन जाएगा, लिन्नासी। लिन्नासी। इसका एनालिसिस करें। अल कुरान जो है वो तो हो गया, मुब्तदा हो गया, मुब्तदा हो गया सर, और हुदन जो है ये है खबर, खबर हो गई। और लिन्नासी, लिन्नासी जो है ये है मुरक्कब जारी। अब आप सुन लें एक पॉइंट, मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी ना कभी मुब्तदा, मुब्तदा तो कभी भी नहीं बन सकता, मुरक्कब जारी मुब्तदा कभी भी नहीं बन सकता। मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा बन सकता है, मुरक्कब इशारी मुब्तदा बन सकता है, मुरक्कब इजाफी मुब्तदा बन सकता है, मुरक्कब जारी खबर भी नहीं बनता, मुरक्कब जारी खबर भी नहीं बनता। क्या बनता है, मुरक्कब जारी हमेशा याद रखिएगा मुताल्लिक बनता है, यानी ये किसी के मुताल्लिक होता है, ये किसी के बारे में होता है। और ये इसका जो मुताल्लिक होता है याद रखिएगा, मुताल्लिक दरअसल 8 चीजों के बारे में होता है, मुताल्लिक 8 चीजों के बारे में होता है। आपको इसमें से मैंने एक चीज भी नहीं बताई है, ठीक है जी। तो इस पॉइंट को भी छोड़ते हैं, बस सिर्फ ये नोट कर लें कि मुरक्कब जारी ना मुब्तदा बनता है ना खबर बनता है, जुमले में उसकी हैसियत हमेशा मुताल्लिक के तौर पे होती है। मुताल्लिक 8 चीजों के मुतालिक हो सकता है, 8 चीजों के मुतालिक हो सकता है। फिलहाल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कहते हैं खबर के मुतालिक, क्योंकि अगर आप तर्जुमा भी देखें तो क्या कुरान हिदायत है, किसके लिए हिदायत है, इंसानों के लिए है ना, तो जी इंसानों के मुतालिक हो गया। जी। तो आप अभी टेम्परेरी तौर पे इसको आप कहें कि मुतालिक किसके है, किसके मुतालिक है, खबर के मुतालिक, खबर के बारे में, लेकिन ये होता 8 चीजों के मुतालिक है, और उसकी 8 मुख्तलिफ चीजें जो अब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो जो चीज आती रहेगी नहीं, मैं आपके सामने उसको ऐड कराता रहूंगा और नोट करते रहेंगे। जो पॉइंट नोट करने का है वो सब पॉइंट नोट करें। मुरक्कब जारी ना मुब्तदा बनता है ना खबर बनता है, जुमले में उसकी हैसियत हमेशा मुतालिक के तौर पर, ठीक है जी। और वो 8 चीजों के मुतालिक होता है। अभी टेम्परेरी तौर पे आप इसको ये कहते हैं जुमला, इसमें जब आप कर रहे हैं कि ये खबर के मुताबिक, अभी
جب تک ہم وہ 8 چیزیں ہمارے سامنے نہیں آئیں گی. ایک ایک کر کے آتی رہیں گی. بائی دا ٹائم آپ کا فیل ختم ہوگا تو 8 چیزیں مکمل ہوں گی. ٹھیک ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک دن میں ساری 8 چیزیں بتاؤں گا, نہیں. بائی دا ٹائم جب آپ کا فیل ختم ہوگا تو جا کے 8 چیزیں آپ کی ختم ہوں گی. ٹھیک ہے, کلیئر ہے سر؟ جی جی. اچھا جی. طلعت جی موجود ہیں؟ ارے عاصم صاحب موجود ہیں. عاصم صاحب کدھر ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طلعت کی خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی شکر ہے. میں نے ذرا آج آپ کو لیٹ جوائن کیا ہے. کوئی مسئلہ نہیں, تو پھر آپ رک جائیے پھر 1 منٹ, اگر آپ نے لیٹ جوائن کیا تو. بلکہ آپ کر دیں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں یہ کتاب ہدایت ہے یا یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. بالکل اسی طرح کا جملہ جیسے اوپر تھا. یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. مجھے ذرا اس کی کنسٹرکشن بتائیے, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ کتاب تو اشارہ ہو گیا. ٹھیک ہے, نہیں ویسے یہ جملہ تام ہے, مکمل جملہ ہے. ٹھیک ہے, جملہ ہے. آپ نے فوراً آنا چاہیے کہ اس میں کرنا کیا آپ نے اس کا, اگر یہ جملہ ہے تو آپ نے اس کا مبتدا خبر ڈھونڈی. اس کا مبتدا اور خبر ڈھونڈی. مبتدا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کتاب مبتدا, کتاب مبتدا لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور متقین کے لیے ہے, متقین کے لیے یہ خبر ہے. اچھا, کتاب مبتدا ہے, متقین کے لیے خبر ہے. تو یہ اور ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت لکھا ہے یا آپ نے رب نہیں کر دیا؟ اچھا سوری, میں نے سوری میں آپ نے رب کر دیا. جی جی. یہ کتاب آپ نے کہا کتاب جو ہے مبتدا ہے, متقین کے لیے خبر ہے, تو ہدایت کیا اور یہ کیا ہے؟ سوری, اب یہ ہدایت جو ہے یہ خبر ہے. ہدایت کو میں خبر کر دیتا ہوں. چلیں, ہدایت کو میں نے خبر کر دیا, متقین کو میں نے متعلق کر دیا. ٹھیک ہے جی, پر کبھی جاری ہے نا. اور جی. کتاب کو میں کر دوں مبتدا. یہ کتاب پورا ہی آئے گا مبتدا. یہ کتاب پورا مبتدا ہو گیا. چلیے جی بنائیے. بنائیں. ہاذا کتاب, ہاذا کتاب, کتاب, ہاذا کتاب, سوچ لیں. بن, ہاذا کتابن, یہ کیا, یہ کتاب کیا چیز ہے؟ مبتدا ہے. اور یہ کتاب مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مرکب. کون سا مرکب؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری. مرکب اشاری میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ مرکب یہ کیا, اشارہ اور مشار الیہ. اشارہ مشار. اشارہ معرفہ ہوتا ہے. ہاں جی. اور مشار الیہ وہ بھی معرفہ ہی ہوگا. تو آپ بنائیے, کیا بنے گا؟ آپ بنائیے. ہاذا کتابن ہدی للمتقین. آپ نے کہا, ابھی تو اس کی بات کریں. یہ کتاب آپ نے کہا مرکب اشاری ہے. ہاں جی. مرکب اشاری میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, اشارہ اور مشار الیہ. اشارہ آپ نے کہا معرفہ ہوتا ہے, مشار الیہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے کہ نکرہ ہوتا ہے؟ وہ بھی معرفہ ہی ہوگا. الکتاب. بنائیے نا, آپ معرفہ نہیں بنا رہی نا, آپ ہاذا کتابن کہہ رہی ہیں. الکتاب معرفہ کرے, معرفہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟
अलिफ लाम, ये जो अलिफ लाम है ना, ये मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। क्यों करता है कंफ्यूज? मुझे हाज़ा पूरा बताइए, अल किताबो, आपको क्यों कंफ्यूज करता है? पहले मुझे इस सवाल का जवाब दें। अलिफ लाम ये तो किसी भी नकरा इस्म को मार्फा करना, आपको लाज़िमन अलिफ लाम लगाना पड़ेगा। हाँ जी, किसी नहीं मार्फा इस्म को मार्फा आप नहीं कर सकते, किसी मार्फा ये इस्म को नकरा भी नहीं कर सकते। ये तो मुझे मालूम है ये कहाँ लगता है, लेकिन ये सेंटेंस में मुझे हमेशा कंफ्यूज कर देता है। इस पे मैंने जरा ध्यान देना है। थोड़ा देर चले, नहीं ध्यान इस तरह से आप देना। आपने कहा हाजा, ये मुरक्कब इशारी है। मुरक्कब इशारी के दो हिस्से, इशारा और मुशारुन इलैह। मुशारुन इलैह मार्फा होता है, इसी तरह से मुरक्कब इजाफी में मुदाफ इलैह मार्फा होता है। जी, तो अगर कोई नकरा इस्म को मार्फा लगाना है तो आपको लाज़िमन उस पे क्या लगाना पड़ेगा? हुदन लिलमुत्तकीन। मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल नाम। तो क्या बन जाएगा? हाजा अल हाज़ल किताबु। किताबु, हाज़ल किताबु, मिला के पढ़ेंगे तो बन जाएगा हाजल किताबु। हुदल लिल मुत्तकीन नहीं आ जाएगा? हाँ सही है, हुदन। हुदन लिल मुत्तकीन, अभी मिला के ना पढ़े, अभी सिर्फ सीधा सीधा करें। अच्छा, हुदन हुदन लिल मुत्तकीन, बिलमुत्तकीन, हुदन बिलमुत्तकीन। ये किताब हिदायत है मुत्तकीन, डरने वालों के लिए। मुत्तकीन किसको कहते हैं? मुत्तकीन किसको कहते हैं तक़वे वाले लोग। जी? तक़वा किसको कहते हैं सर? डरने वाले। जी सर, अल्लाह का खौफ रखने वाले। अल्लाह का खौफ, मतलब अल्लाह का खौफ किस तरह से? अल्लाह का खौफ किस चीज का खौफ? जैसे शेर से खौफ होता है या अमेरिका से खौफ होता है, ऐसा खौफ किस चीज का खौफ? अल्लाह की हिदायत, अल्लाह की हिदायत का खौफ? नहीं, अल्लाह की हिदायत के मुताबिक ना चलने का खौफ, के हमसे कोई गलती ना हो जाए। एक्चुअली जो तकवा का जो बुनियादी माना है वो है बचना। तकवा का बुनियादी माना है बचना। इसको डर के माने में भी लिया जाता है। डर किस चीज का? खौफ किस चीज का? इस चीज का डर, इस चीज का खौफ कि अल्लाह की रहमत मुझसे ना छीन जाए, अल्लाह की शफकत मुझसे ना छीन जाए, इस चीज का खौफ। ये वो वाला खौफ नहीं है जो किसी जानवर को देख के हो जाए या किसी डाकू को देख के हो जाए या कराची में नाजरवाद से गुजर रहे और कोई टीटी दिखा दे, उस चीज का खौफ नहीं है। ये बगैर उसका खौफ। तो हिदायत है किसके लिए? मुत्तकीन की। एनालिसिस करें, क्या करेंगे इसकी एनालिसिस? जी तला जी, एनालिसिस करें इसकी। ये किताब जो है ये मुरक्कब इशारी है। हाँ, तो इसकी एनालिसिस करें प्रॉपर। हाजा इशारा, हाजा इशारा, अल किताबु मुशारुन इलैह, जी हुदन जो है मिलके मुरक्कब इशारी बनाया, और ये मुरक्कब इशारी क्या बन गया? मुब्तदा। मुब्तदा, हुदन खबर, खबर, लिलमुत्तकीन लाम जारा, मुताल्लिक, नहीं लाम जारा, लाम जारा, मुत्तकीन मजरूर, जारा और मजरूर मिलके मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी, और ये मुरक्कब जारी मुताल्लिक। आपके मुतालिक किसके? खबर के। मुब्तदा अपनी खबर और अपने मुतालिक से मिलकर जुमला इस्मिया हो गया। ये किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए। ये किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए। आसिम साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर जी? अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम साहब, मैं आपसे कहता हूँ जैद घर में मौजूद है।
زید گھر میں موجود ہے. جی بنائیے. یہ سب سے پہلے تو مرکب تام ہے، مکمل جملہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے. صحیح. اور اسمیہ خبریہ ہے کہ گھر میں موجود ہے. اچھا، اب اس میں پہلے میں عربی بنا دوں پھر اس کا انالیسس کروں. ہاں بالکل بنائیے. ٹھیک ہے. اس کا ہوگا زیدن. زیدن. زیدن کیوں کیا آپ نے؟ یہ مبتدا، سوری یہ مبتدا ہے کیونکہ اس سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ معرفہ ہوگا زیدن. 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 یہ موجود ہے تو موجودن یہ اس کا موجود. عربی کیا ہے؟ موجود. موجود. فی البیتی. فی البیتی. فی البیتی. انالیسس کریں. اس میں زیدن مبتدا ہے، جی موجودن خبر، ٹھیک ہے. اور فی البیتی مرکب جاری ہے جس میں فل جو ہے حرف جارہ ہے فی، اور البیتی جو ہے وہ مجرور ہے، ٹھیک. اور یہ متعلق ہے. یہ متعلق ہو گیا خبر موجود ان کے. جی ٹھیک ہے جی. لائن پہ بندے رہیے گا. میں آپ سے کہتا ہوں زید گھر میں ہے. جی میں ہی بناؤں گا انور صاحب. جی جی آپ جی میں جی. نے آپ سے کہا تھا لائن پہ بندے رہیے. اچھا، زید گھر میں ہے، یہ بھی مرکب تام ہے، مکمل جملہ ٹھیک ہے. ہے بنائیے. زیدن فی البیتی. زیدن فی البیت. بندے رہیے گا لائن پر. صحیح ہے. زیدن فی البیت. انالیسس کریں سر. زیدن مبتدا صحیح ہے. اور فی البیتی مرکب جاری ہے ہوں. جس میں فی حرف جارہ ہے اور بیتی مجرور ہے، ہوں. اور یہ زید کے متعلق ہے تو متعلق ہو گیا. زید کے متعلق تو نہیں ہے. چلے ہمیں کہتے ہیں متعلق ہو گیا. تو اس میں تو مبتدا اور متعلق ہے. خبر کا ہے. خبر کا ہے. یہ جو ہے. گھر میں ہے یہ خبر بھی ہے اور مرکب جاری بنتا ہے. گھر میں ہے خبر ہے. سر جی اوپر والا جملہ دیکھیں نا، اس میں تو تھا زید گھر میں موجود ہے. آپ کو وہاں مبتدا بھی نظر آیا، خبر بھی نظر آئی، متعلق بھی نظر آیا. نیچے والے جملے کے اندر جو ہے وہ مبتدا نظر آ رہا ہے، متعلق نظر آ رہا ہے، خبر نظر نہیں آ رہی. نظر آ رہی ہے؟ مجھے بتائیے کہ نظر آ رہی. کیونکہ میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا کہ مرکب جاری نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتا، متعلق بنتا. 8 چیزوں کے متعلق بنتا. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ سے کہا ٹیمپریری طور پہ آپ سمجھ لیں، آج کی کلاس کے حوالے سے سمجھ لیں کہ متعلق جو ہے نا خبر کے بنتا ہے. یا تو خبر ہی نہیں ہے تو متعلق کیسے بنے گا؟ متعلق ہے یہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے خیال میں پھر یہ کیسے مکمل ہوا جبکہ ہے مکمل کام زید گھر میں ہے.
ہے आ गया है या है आ जाए, इसका मतलब मफहूम का मतलब मुकम्मल का मफहूम आ गया। जी, अगर हम ये देखें कि ज़ैद घर में है तो ये एक मुकम्मल जुमला है। जी मुब्तदा से मुतालिक तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं नहीं, कभी भी याद रखिएगा मुतालिक जो है ना वो मुब्तदा की कभी नहीं होती। 8 चीजों में मुब्तदा शामिल नहीं है। वो तो चले, मैंने अभी आपको बता रहा है ना कि अभी आप टेम्परेरी तौर पे समझेंगे मुतालिक खबर क्यों है, लेकिन आपको इस जुमले में तो कोई खबर नजर ही नहीं आ रही ना। तो अब आप एक पॉइंट नोट कर लें, पॉइंट ये नोट कर लें कि मुरक्कब जारी मुब्तदा तो बन ही नहीं सकता। आप घोड़े भी खोलने तो नहीं बन सकता, आप कुछ भी ऊपर से नीचे भी कूद जाए हम सब, तो मुब्तदा जो है मुब्तदा नहीं बन सकता मुरक्कब जारी, कभी भी नहीं बन सकता। और जब आप फेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा फाइल भी नहीं बन सकता, मफूल भी नहीं बन सकता। मतलब फेल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें तो बनता ही सिर्फ मुतालिक और कुछ बन ही नहीं सकता। जुमला इसमें भी मुतालिक ही बनता है। लेकिन बाज दफा खबर को माजूफ कर दिया जाता है। ज़ैद घर में है, ऐसा क्या मतलब? घर में क्या है? घर में ही है ना, चाहे सो रहा होगा, मौजूद होगा तो मौजूद ही ना, घर में है ना जब आपने कहा तो बाज दफा क्या होता है, खबर को माजूफ कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। कि कोई भी वजह हो सकती है, उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक वजह ये होती है छुपाने की, माजूफ करने की, कि वो इतना ज्यादा वाज़ेह होता है कि उसको मेंशन करने की जरूरत ही नहीं। और बाज दफा कोई पर्पसली आपकी को वजह होती है कि आप उसको छुपा दें। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपसे कहूं कि जमीन और आसमान को पैदा किया गया जमीन और आसमानों को। मुझे बताएं, आपको यहाँ कोई साइंस लड़ानी है कि किसने पैदा किया? नहीं। आपको पता है कि इसका फाइल कौन है? जी। कौन है फाइल? अल्लाह ताला। अल्लाह। तो यहाँ मैं फाइल को जाहिर भी नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कहा खुलिका, पैदा किया गया, खुलिका, मैंने यहाँ फाइल को मजूल कर दिया। इसी तरह से बाज दफा खबर को जो है माजूफ हो जाती है। उसकी 2 वजूहत है, या तो वो इतनी ज्यादा वाज़ेह होती है कि उसको करने की जरूरत ही नहीं है, या उसको पर्पसली छुपा दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि जब जुमला इस्मिया के अंदर खबर माजूफ हो तो जो मुतालिक है, ये जो मुतालिक होता है, इसको फिर हम कहते हैं कायम मुकाम खबर। इसको क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर अगर छुट्टी पे चला जाता है तो कायम मुकाम प्राइम मिनिस्टर आता है ना। ऑफिस के अंदर अगर जब कोई सीईओ छुट्टी पे चला जाता है तो उसकी जगह कोई एक्टिंग आ जाता है ना, सर। इसको कायम मुकाम खबर करते हैं। क्यों? क्योंकि जुमला इसमें कंप्लीट ही नहीं हो सकता जब तक मुब्तदा के साथ खबर ना। तो फिर आप कहते हैं कि इसका जो खबर है, असल खबर है, वो माजूफ है, और जो फिल बैती जो है जो कि मुतालिक है, उसको आप कहते हैं कायम मुकाम खबर। और अरबी ग्रामर वाले ऐसी सूरत में ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, सर नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह काम आएगा आपको आगे बहुत। अरबी ग्रामर वाले फिर कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जो खबर माजूफ होती है, जो माजूफ खबर होती है, वो उमूमन 2 में से कोई एक हो सकती है। या तो वो मौजूदुन होगी, अगर मुज़क्कर होगा तो मौजूदुन कहेंगे, मुअन्नस होगा तो क्या कहेंगे? मौजूदतुन। ठीक है, या वो कहेंगे मौजूदुन होगी, या वो कहेंगे साबितुन। मुज़क्कर होगा तो साबितुन, और अगर मुअन्नस होगा तो साबी। ये वो कहते हैं कि ये हो सकती है। तो आप कहेंगे कि वही वाली बात जैसे आता ना, आपने क्या आप इसकी माजूफ खबर क्या हो सकती है? ज़ैदुन मौजूदुन फिल बैती। आपको माजूफ खबर निकालने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो कहते हैं कि इसकी माजूफ खबर क्या हो सकती है, जो चीज छुपी हुई है वो क्या हो सकती है।
کہتے ہیں کہ یا تو موجودن کے بیس پہ کہتے ہیں کہ موجود ہے، یہ ثابت یعنی طے شدہ ہے. جس طرح سے آپ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں الحمد للہ، اب مجھے بتائیں الحمد للہ رب العالمین کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر، میں اگر آپ سے کہوں الحمد للہ تو آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الحمد للہ مجھے بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مرکب لگ رہا ہے کہ مرکب تام لگ رہا ہے کہ مرکب ناقص لگ رہا ہے؟ الحمد للہ جی ناقص لگ رہا ہے. الحمد للہ سب تعریف الحمد آ رہا ہے، معرفہ ہے، حالت رفع ہے، مبتدا ہے. خاص تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. خاص نہیں، الحمدو کے اندر دونوں معنی آتے ہیں. الحمدو صرف خاص ہے اللہ کے لیے، یاد رکھیے گا. اور اس کے اندر پیراللی دونوں چیزیں چلتی ہیں، تعریف اور شکر دونوں چلتا ہے. آپ کہتے ہیں کل کی کل تعریف اور شکر للہ اللہ ہی کے لیے، ٹھیک ہے نا. آپ کہیں گے تمام کی تمام تعریف اور تمام کا تمام شکر اللہ ہی کے لیے، تو وہاں آپ کیا کہیں گے؟ معذوف خبر کیا؟ ثابتن. کل کی کل تعریف اور شکر ثابت ہے اللہ ہی کے لیے، ٹھیک ہے. تو آپ پھر کیا کہیں گے ایسی صورت میں؟ الحمدللہ میں آپ کہیں گے الحمد مبتدا، للہ کو آپ کہیں گے مرکب جاری، اور یہ مرکب جاری کیا بن جائے گا؟ قائم مقام خبر. تو جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ پوائنٹ صرف یہ ہے کہ مرکب جاری مبتدا تو بن ہی نہیں سکتا، خبر بھی نہیں بنتا، متعلق کے طور پہ آتا ہے. لیکن اگر جملے میں اگر خبر معذوف ہو تو پھر ایسی صورت میں مرکب جاری جو ہے وہ سٹیٹس لے لیتا ہے قائم مقام خبر کا. وہ سٹیٹس کس چیز کا لے لیتا ہے؟ قائم مقام خبر کا لے لیتا ہے. کلیئر ہے سر یہاں تک؟ جی سر یہ بتائیے کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ سر کا جواب نہیں دیا کسی نے. میجر صاحب آپ ہی دے دیں. فی الحال تو سر کلیئر ہے. جی بعد میں کلیئر ہوگا تب دیکھ لیں گے. ہاں جی جب انکلیئر ہوگا تب دیکھ لیں گے. بہت آسان ہے، آپ ٹینشن نہیں لیں. بالکل اس میں ایک سیکنڈ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ قائم مقام خبر جو ہے یہ بتایا کہ دو صورتوں میں ہی ہے، یا تو موجودن یا ثابتن. نہیں، یہ تو میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ قائم مقام خبر ہم اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ اس کی خبر معذوف ہوتی ہے. تو عربی گرامر والے کہتے ہیں وہ جو معذوف خبر ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ معذوف خبر جو چھپی ہوئی خبر ہے وہ کہتے ہیں یا تو اس کے لیے موجودن کا لفظ استعمال کر لیں یا ثابتن کا کر لیں، ڈیپینڈ کرتا ہے. باقی اور کوئی اور لفظ یعنی صرف یہی دو کامنلی استعمال کی، کیونکہ یہ دونوں ریپلیس ہو جاتے ہیں ہر جگہ. یہ ریپلیس ہو جائیں گے. آپ کے سامنے بہت ساری ایگزامپلز آئیں گے، آپ دیکھیں گے آپ کو ریپلیسمنٹ مل جائے گا انہی دونوں ورڈ سے. یہ دونوں ورڈ سے جو ہے نا، یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ آپ کو جہاں بھی معذوف خبر نظر آئے گی نا عموماً آپ کو یہ ریپلیس ہو کے مل جائیں گے. عموماً 100% نہیں لیکن عموماً آپ کو مل جائے گی. چلیں جی پھر آپ ہی سے سوال کرتے ہیں. آپ ہی سے سوال ہو جائے. میں آپ کے سامنے عربی میں لکھتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، اللہ قدیر علی کل شیء، یہ اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ ہر چیز. ترجمہ کو چھوڑ دیں، اس کی انالیسس کریں. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اللہ کیا لگ رہا ہے؟ اللہ مبتدا ہے. کیسے پتہ چلا مبتدا ہے؟ اس لیے کہ یہ معرفہ بھی ہے اور رفع میں بھی ہے.
सबसे पहली चीज कैसे पता चला? अल्लाह मारफा भी इससे में, सबसे पहली बात इससे में। दूसरी बात मारफा है, हालत रफा में आंख बंद करें क्या बन जाएगा? खबर। कदीरुन क्या लगा? ये खबर कैसे पता चला? ये नकरा है और दूसरा मारफा है, सॉरी हालत रफा, हालत रफा। हालत रफा है, नकरा है, शुरू में मुब्तदा है, क्या बन सकता है? खबर। लेकिन इस खबर को आपको रिलेट करने के लिए मुब्तदा का लाजिम होना मौजूद है। जी जी, ये होगा तो ही आप इसको खबर बना सकेंगे, वरना नहीं बना सकेंगे, याद रखिएगा जी। अला कुल्ली शैइन क्या लग रहा है? ये तो मरकबे जारा है, जारी। एक मिनट, अला जो है हरफ जारा, 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 ठीक है। कुल्ली क्या है? कुल्ली तो कुल्ली शैइन सिफ्त में नहीं आ कुल, रही। ज़र्फ, कुल कुल जो हमने पढ़ा था वर्ड कुल्लू। ज़र्फ ज़र्फ। जी बोले 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 बोले, घबराए नहीं। ये ज़र्फ कह रहे हैं। ज़र्फ तो है, लेकिन है क्या कुल्ली है? तमाम नकरा है, नकरा है। मजरूर। ये सिफ्त में नहीं आ रही। मुझे बताइए कुल्ली इससे में क्या नहीं है? है इससे में है ना? जी जी, इससे में। अब मुझे बताएं, इसम के ऊपर ना अलिफ लाम आ रहा है, ना इसके ऊपर इसकी तरमीम भी हल्की है, इसका इराब भी हल्का है ना? जी जी, अलिफ लाम भी नहीं आ रहा। अगर किसी इसम के ऊपर अलिफ लाम ना आ रहा हो, उसका इराब हल्का हो, तो आपका गालिब गुमान क्या है कि वो क्या हो सकता है? मुदाफ। मुदाफ। उसकी कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी? अगले वर्ड से कि वो जर में हो। अगला वाला जर किस वक्त में? जर में है। जर में। इसका मतलब कुल्ली क्या है? कुल्ली है मुदाफ। शहीन क्या हो गया? मुदाफ इलैह। मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके क्या बने? मुरक्कब इजाफी। और ये मुरक्कब इजाफी इस जारा के लिए क्या बन गया? मजरूर। मजरूर। जारा और मजरूर मिलके क्या बन गए? मुताल्लिक। मुताल्लिक इस खबर के। तर्जुमा करें, क्या करेंगे? अल्लाह अल्लाह हर चीज पर कादिर। नहीं, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, कैसे होगा? याद रखिएगा, मुरक्कब अभी पहले किससे सवाल पूछा था मुझसे, मैं खाली कुलसुम जी ने पूछा था। तो कुलसुम जी एक पॉइंट नोट कर लें, जुमला इस्मिया का तर्जुमा कैसे होगा? पहले मुब्तदा, फिर खबर, उसके बाद जो कुछ भी आता। पहले मुब्तदा, फिर खबर और फिर जो कुछ भी आता। ठीक है जी, अब तर्जुमा करें इसका अपना डॉक्टर साहब। अल्लाह कादिर है हर चीज पर। अल्लाह कादिर है हर चीज पर। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। कुरान में ऐसे नहीं लिखा हुआ है ना? जी जी, कुरान में कैसे लिखा हुआ है? कुरान में ऐसे लिखा हुआ है, अल्लाह क्या लिखा हुआ है? अला कुल्ली शैइन कदीर। कुरान में ऐसे लिखा हुआ है ना? जी जी, अब इसके एनालिसिस करें, क्या करेंगे? अल्लाह मुब्तदा, अल्लाह जारा, कुल्ली मुदाफ, शैइन मुदाफ इलैह, मुदाफ और मुदाफ मिलके जारा के लिए मजरूर, जारा और मजरूर मिलके मुताल्लिक, और कदीरुन खबर। ऐसे ही है ना? जी। मुब्तदा अपने मुतालिक और अपने खबर से मिलकर जुमला इसमें। अब इसका तर्जुमा करें, क्या करेंगे? अब तो तर्जुमा तो वही होना चाहिए। कैसे वही होना चाहिए सर? अगर तो ऐसा सच करेंगे तो फिर है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। पहले आपने क्या तर्जुमा किया था? अल्लाह कादिर है हर चीज पर। दोनों में फर्क नहीं लगा?
एम्फसाइज करने पे है, एम्फसाइज करने पे है। क्या फर्क हुआ देखें, नॉर्मल तर्जुमा क्या है याद रखिएगा, नॉर्मल तरकीब क्या है जुमला इसमें लिखने की, पहले मुब्तदा फिर खबर फिर सब कुछ आता, लेकिन बाज दफा याद रखिएगा कुछ चीज जो है ना वो मौखर या मुकद्दम हो जाती है। कभी कभार चीजें मौखर और मुकद्दम की जाती हैं। जब वो मौखर और मुकद्दम की जाती है तो जिस चीज को मुकद्दम किया जाता है उसके ऊपर एम्फसाइज करना लाजिम होता है। जब किसी चीज को आप मुकद्दम करते हैं, पहले लाते हैं, इसका मतलब उसके ऊपर एम्फसाइज करना है। अल्लाह कदीरुन अला कुल्ली शै, अल्लाह कादिर है हर चीज के ऊपर। अल्लाह अला कुल्ली शै कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये तो हर चीज के, देखिए कुरान मजीद जो है ना ये ट्रांसलेशन की चीज ही नहीं है, ये महसूस करने की चीज है। देखा जाए तो एक ही तरह की चीजें आप उसको एक ही तरह से कर सकते हैं, लेकिन जब आपने मुतालिक को मुकद्दम कर दिया खबर पे तो एम्फसाइज आपने किसको दिया, मुतालिक को दिया आपने। तो आपने कहा अल्लाह हर चीज पे कादिर है, यहाँ आपने कहा अल्लाह कादिर है हर चीज पर। यहाँ आपने एम्फसाइज किसको दिया, उसकी कुदरत के ऊपर दिया। यहाँ आपने एम्फसाइज किया गया कि हर चीज को जो एम्फसाइज कर दिया, यानी कोई चीज ऐसी नहीं है जो उससे बाहर हो सकती है उसकी कुदरत से। बात यहाँ भी वही थी, लेकिन ये पावरफुल हो गया, ये ज्यादा पावरफुल हो गया। पॉइंट आपके सामने एक और क्या आया, जैसे एक पॉइंट तो आपके सामने आया कि अगर जुमले के अंदर खबर माजूफ हो तो मुरक्कब जारी यानी मुतालिक जो है वो कायम मुकाम खबर हो जाता है। दूसरा आपके पास एक पॉइंट आया कि बाज दफा चीजों को मुकद्दम या मौखर कर देते हैं उसमें स्ट्रेंथ पैदा करने के लिए, उसमें पावर पैदा करने के लिए किया जाता है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल, कोई अशकाल तो पूछिए। जी सर जी कोई सवाल ही पूछ लो। साडूमाल मेजर साहब आप ही पूछते सवाल, बाकी तो कोई पूछना नहीं चाह रहा, या सलीम साहब आप पूछ लें। अब ये मत पूछिएगा कल सेनेट का इलेक्शन, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब ये मत, वैसे मेजर साहब कल सेनेट का इलेक्शन कौन जीत रहा है? सर अभी तक तो बड़ी एक्सपेक्टेशन चल रही है। आप किसको जितवा रहे हैं? अभी क्या होता है मेजर साहब? सर मेरा तो ख्याल है कि वो हफीज शेख आ जाएगा। हफीज शेख हार जाएगा, लेकिन अगर हफीज शेख हार जाएगा तो सही तो बड़ी, अगर हफीज शेख हार गया फिर तो आपकी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो है वो तो अदम एतमाद का वोट आसान हो जाएगा। नहीं मैं कह रहा हूँ हफीज शेख आ जाएगा। आ जाएगा मतलब ही विल विन। उसूल तो यही कहता है कि उसको जीतना चाहिए, लेकिन अभी जो डोरे हैं वो कुछ गड़बड़ कर रही है। चलिए वो कल बताएंगे। आपने वैसे वर्डिक्ट दे दिया अपना, अब कंफर्म जीता। चले जी, अच्छा जी, दो चीजें आपके सामने आई नहीं, एक तो मुरक्कब जारी के हवाले से कि मुरक्कब जारी जुमले के अंदर मुतालिक बनकर आता है, और अगर खबर माज़ूफ हो तो फिर वो कायम मुकाम खबर का स्टेटस ले लेता। दूसरी चीज जो आपके सामने आई वो ये आई कि बाज़ दफा खबर को मुकद्दम या मौखर भी किया जा सकता है, खबर को जो है मुकद्दम या मौखर किया जा सकता है। अब आपके सामने मैं एक चीज रखना चाहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट इस हवाले से है कि अच्छा जी, आपके सामने जो मैं बात अभी रखना चाहता हूँ ये मुब्तदा कौन है किससे पूछे चले। सलीम हमारे मरहूब साहब किधर है?
महबूब साहब गायब हो गए। चलिए सलीम साहब आप मुझे बताइए, सलीम साहब जी जी ये मुझे बताइए कि जुमला इस्मिया के बारे में बताइए। जुमला इस्मिया किसको कहते हैं? जुमला इस्मिया के अज्जा कौन कौन से? जो इसम से शुरू हो ठीक है, और उसमें फिर बात मुकम्मल हो, ठीक है, और उसका उसमें है कि कोई खबर हो, और फिर खबर के अलावा बाकी उसके जो हैं कि कभी उसमें मुरक्कब इशारी या ये आप थोड़ा बाहर चले गए। आपसे मैंने पूछा जुमला इस्मिया किसको कहते हैं? आपने कह दिया उसको कहते हैं जो इस्म से शुरू होता है उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। जी, और खत्म हो गए। हाँ जी। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये था कि जुमला इस्मिया के कम से कम अज्जा क्या होते हैं? जुमला इस्मिया किस चीज से मुरक्कब हुआ होता है? क्या होता है जुमला इस्मिया? वो मुझे आप बताएं ना, क्या होता है जुमला इस्मिया? जुमला इस्मिया के कम से कम अज्जा क्या है? खबर होगी या सिफत? हाँ जी। नहीं हाँ सर, आप हर चीज में हाँ जी ना कर दिया करें यार सलीम साहब। मुरक्कब अपना जुमला इस्मिया के अंदर कम से कम अज्जा क्या है? मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर सर। लेकिन वो तो फिर वो तो इस्मिया खबरिया बन गया ना। तो एक मिनट रुक जाइए। कोई भी जुमला जो इस्म से शुरू होगा वो जुमला इस्मिया होगा। ठीक है, खबरिया या इंशाइया तो किस चीज को कहते हैं? यानी जिस जुमले से आपको खबर मिले उसको आप खबरिया कहते हैं, और जिस जुमले से कोई आपको तलब मिले उसको आप इंशाइया कहते हैं जी। उसका मुब्तदा या खबर से तो कोई ताल्लुक नहीं है। जुमला इस्मिया के जो बेसिक जो अज्जा हैं, बेसिक अज्जा वो दो ही है। निहारी का जो बेसिक अज्जा है वो क्या है? वो तो उसका गोश्त है ना सर। वो तो उसका गोश्त है। अब आप चाहे उसको रोटी से खाएंगे, नान से खाएं, मैं तो शीरवान से भी खाता हूँ, बल्कि चावल से भी खाता हूँ, वो आपकी मर्जी है, वो तो अलग चीज है। वो तो तलब या खबर एक अलग एक केस हो गया। असल चीज क्या है? ये तो नारी के साथ नाइंसाफी होगी ना सर, ऐसा आप कभी नारी के साथ खाएं तो सही चावल। और निहारी कभी भी फ्रेश भी मत खाइएगा मेजर साहब, निहारी एक दिन बाद की खाएं, याद रखिएगा। ये आपको मैंने बहुत जबरदस्त टिप दी है। तो ये जुमला इस्मिया का जो मेन चीज है ये याद रखें, उसका जो मेन अज्जा है वो दो है, मुब्तदा और खबर। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे मुब्तदा का रूल बताइए। मुब्तदा के क्या रूल है? मुब्तदा जो है वो इसम होगा, मारफा है। इसम तो होगा ना, देखिए इसम तो होगा। जो जुमला इसम से शुरू हो रहा तो वो तो है ही ना इसम। मुब्तदा तो कहते हैं उसी को ना कि जिस इसम से इब्तिदा हो उसको। हाँ। मुब्तदा का मुझे रूल बताइए, मुब्तदा का कानून क्या है? वो मारफा में होगा, हालत रफा होगी। अच्छा, अब रुक जाइए, इधर ही रुक जाइए। क्या हर दफा मारफा होगा? इसम तो फिर हर दफा मारफा ही होगा। देखिए आप थोड़ी सी अपनी टर्मिनोलॉजी पे ख्याल रखना। इसम क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि जुमला इस्मिया है तो वो उसका मुब्तदा इसम ही होगा। सर हर कलमा इसम होगा। जब मैं जुमला इस्मिया की बात कर रहा हूं तो उसकी इब्तिदा जिस लफ्ज से होगी वो इसम से ही होगी। आप उसको मारफा क्यों कह रहे हैं? आप इसम मारफा क्यों कह रहे हैं? इसम क्या नकरा नहीं हो सकता? हाँ, इसम नकरा भी हो सकता है ना। हाँ जी, किताब जैसे किताब हो गया, ठीक है ना, मारफा भी होगा। आप मुब्तदा की बात करें, आप मुब्तदा के लिए मुब्तदा की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें। इसम जो है वो मुब्तदा जो है इसम का हिस्सा है, इसम मुब्तदा का हिस्सा नहीं है। तो हम बात मुब्तदा की करें। मुब्तदा का आप मुझे बताइए, मुब्तदा का क्या कानून है? आपने कहा मारफा होता है, हालत रफा में होता है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या जिस तरह से हालत रफा में होना उसका लाजमन है, क्या उसका मुब्तदा का मारफा होना भी लाजमन है? 95% है।
95%, इसका 5% की गुंजाइश है, 5% की गुंजाइश है कि मुब्तदा मारफा नहीं होगा। तो मारफा नहीं होगा तो क्या होगा? नकरा होगा। नकरा होगा। तो याद रख लें मुब्तदा, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मुब्तदा मारफा होता है, उमूमन मारफा होता है, 95% मारफा होता है, 5% मारफा नहीं हो सकता। मुब्तदा के मारफा ना होने की, यानी मुब्तदा के मारफा ना होने का मतलब है मुब्तदा के नकरा होने की। मुब्तदा के नकरा होने की 7 वजूहात हैं। कितनी वजूहात है सर? 7 वजूहात हैं। मैं आपके सामने सिर्फ 3 अभी रखूंगा क्योंकि आपको अभी 3 ही की जरूरत है। मुब्तदा की नकरा होने की 7 वजूहात हैं। मैं आपके सामने अभी सिर्फ 3 वजूहात रखूंगा, बल्कि बुनियादी तौर पे 2 वजूहात रखूंगा। एक वजह तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सी पढ़ चुके हैं आप? इस वक्त याद नहीं आ रहा। तौसीफी। नहीं, गौर करें, थोड़ा सा गौर करें। मेरा ख्याल जब उसकी निस्बत नकरा को साथ हो। हाँ ना, तो कौन सा मुरक्कब पढ़ चुके हैं ना? एक तो आप पढ़ चुके मुरक्कब इजाफी, यानी जब मुब्तदा मुदाफ हो, क्योंकि मुरक्कब इजाफी में असल अहमियत किसकी? मुदाफ की है ना। मुब्तदा में असल अहमियत मुदाफ की है। तो मुदाफ जो है वो आपको मालूम है, उस पर अलिफ लाम नहीं होता, उसका इराब हल्का होता है, तो नकरा हो गया वो। लेकिन आप उसको मुब्तदा बना के क्यों लाते हैं? क्योंकि उसकी निस्बत अगर मारफा से कर दी जाए तो मारफा हो जाता है, लेकिन मारफा के साथ ना भी निस्बत की जाए तो मुदाफ बतौर नकरा इससे भी कहलाता है, लेकिन वो मारफा बन के आ सकता है, वो मारफा बन के आ सकता है। तो मुब्तदा की नकरा में आने की जो 7 वजूहात हैं, उसमें से मैंने आपको कहा मैं सिर्फ 3 वजूहात रखूंगा। एक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और एक वजूहात क्या है कि मुब्तदा मुदाफ हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं? कुल्लू को आप कहते हैं कि ये मुदाफ है, और आपको ये मुदाफ पता है, ये नकरा आ रहा है। नफ्सिन को आप कहते हैं मुदाफ इले, मुदाफ और मुदाफ इले मिलके आप कहते हैं मुब्तदा। ज़ाइक़ा तो ये भी देखें आप, ये भी मुदाफ है, और अल मौती ये मुदाफ इले। मुदाफ और मुदाफ इले मिलके आप कहते हैं खबर। मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। हर जान को मौत का मजा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। तो पहली वजह जो है मुब्तदा की नकरा में आने की क्या है कि वो मुदाफ हो। पहली वजह क्या है? वो मुदाफ हो। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह आप समझ लें कि जब जुमला दुआइया हो, दुआइया से मुराद कि ऐसा जुमला हो जिसमें दुआ का मफहूम पाया जाए, चाहे वो दुआ जो है वो अच्छी दुआ हो या बद दुआ हो, दोनों दुआएं हो सकती हैं। ऐसी सूरत में मुब्तदा नकरा आता है। यानी दूसरी कंडीशन क्या है इसकी कि जुमला जो है वो दुआ की सूरत में आइया हो। अब दुआ याद रखेगा, अरबी में दुआ ही कहते हैं, चाहे अच्छी दुआ हो चाहे बुरी दुआ हो, हम उसको कहते हैं दुआ बद्दुआ, लेकिन दुआ ही कहलाता है। तो जब जुमला दुआइया हो तो याद रखिएगा ऐसी सूरत में मुब्तदा हमेशा नकरा आता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, सलामुन अलैकुम। तो सलामुन
को आपने मुब्तदा लिया, अलैकुम को आपने क्या लिया, मुरक्कब जारी, और फिर आपने मुरक्कब जारी को आपने कहा ये मुतालिक हो के कायम मुकाम खबर हो गई। सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम्हारे ऊपर, ठीक है, सलामती हो तुम्हारे ऊपर। एक और एग्जांपल ले लें, वैलुन, वैलुन कहते हैं हलाकत को, वैलुन किसको कहते हैं, हलाकत को कहते हैं। वैलुन लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत है डंडी मारने वालों को। अब ये डंडी जो है, चाहे वो नाप तोल की मारी जाए, किसी के हक में मारी जाए, किसी और वजह से मारी जाए, ठीक है। तो दो वजूहात आ गई आपके पास मुब्तदा की नकरा आने में। पहली वजह मुदाफ है, इसको ना भी वो करें कोई मसला नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो समझ लें कि एक वजह ये है कि वो ऐसा जुमला हो जो दुआइया सूरत में हो, दुआ चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, ऐसी सूरत में याद रखिएगा मुब्तदा को नकरा लाए। एक जो बहुत अहम वजह है जो कुरान मजीद में आपको बहुत मिलेगी, बहुत ज्यादा उस्लूब है उसका, बहुत ज्यादा उस्लूब है। वो उस्लूब ये है कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा पहले आता है और खबर बाद में आती है। बाज़ दफा, और मैंने आपको बताया कि कुरान मजीद में ये उस्लूब बहुत खास मौजूद है कि चीजों को मौखर और मुकद्दम किया जाता है। बाज़ दफा मुब्तदा को मौखर कर दिया जाता है, मुब्तदा को मौखर कर दिया जाता है। इसका क्या मतलब है, खबर को मुकद्दम कर दिया जाएगा। मुब्तदा को मौखर कर दिया जाएगा तो इसका ना खबर मुकद्दम हो जाएगी। ऐसी सूरत में याद रखिएगा उमूमन, बल्कि उमूमन क्या 99%, बल्कि 100% मुब्तदा जो है वो नकरा आएगा, मुब्तदा जो है वो नकरा आएगा। और जब मुब्तदा को मौखर किया जाता है, मुब्तदा को जब मौखर किया जाता है तो याद रखिएगा ऐसी सूरत में जो खबर होती है, वो दो सूरतों में होती है। खबर जो है वो दो सूरतों में होती है, याद रखिएगा। वो दो सूरतें क्या होती हैं, या तो वो खबर जार मजरूर होगी, खबर क्या होगी, जार मजरूर होगी, या ऐसा मुरक्कब इजाफी होगा, ऐसा मुरक्कब इजाफी होगा जिसका मुदाफ ज़र्फ होगा, जिसका मुदाफ ज़र्फ होगा। आप पहली वाली एग्जांपल को सामने रखें, दूसरी को छोड़ दें, थोड़ी देर के ज़र्फ वाली को छोड़ दें। ज़र्फ वाली मैं आपको एग्जांपल इसी से समझा दूंगा, पहले उसको समझें। ये कुरान मजीद में बहुत उस्लूब मौजूद है, बहुत ज्यादा उस्लूब मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, अल्लाह अब सारी है, क्या लगता है जी, अल्लाह अब सारी, जरा बताइए मुझे। उनकी आंखों के ऊपर। हाँ, लेकिन इसकी एनालिसिस करें। ये वर्ड क्या लिखा है, अल कार, अला अब सारी है, अब सॉरी, एनालिसिस करें। ये आंखों के ऊपर तो आपने सही कहा था, इसकी अब एनालिसिस भी करें ना साथ साथ। ये मुरक्बे जारी और फिर मुरक्बे इजाफी। हाँ, लेकिन इसको करें तो सही, एनालिसिस करें। चार, अला जारा और अब सारे मजरूर, नहीं, अला जारा अब सारे हिम बजाते खुद एक मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। इसको करें तो अफसार को आप कहेंगे मुदाफ और हिम को आप कहेंगे मुदाफ इलैह। मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके जारा और ये मजरूर, और ये जारा मजरूर मिलके मुरक्कब जारी बनेंगे, ऐसे ही है जी। फिर आता है अला अबसारिहिम रिशावतुन,
अला अब्सारिहिम गिशावतुन। तो अब आप देखें यहाँ मुब्तदा किस हालत में आया, नकरा आया, क्योंकि मुकद्दम किसको करना था, खबर को मुकद्दम करना था। लेकिन याद रखिएगा, जो पॉइंट आपको याद करने का है वो ज़हन में अच्छी तरह से बिठा लें कि जब भी मुब्तदा को मौखर करते हैं, जब भी मुब्तदा को मौखर करते हैं तो जो खबर आती है वो उमूमन आपको खबर क्या मिलेगी, आपको खबर आपको जार मजरूर की सूरत में मिलेगी। खबर आपको क्या मिलेगी, जार मजरूर यानी मुरक्कब जारी मिलेगी। तो उस सूरत में फिर आप इसको कहेंगे जार मजरूर करके आपने इसको कहा कायम मुकाम खबर, मुकाम खबर मुकद्दम, और विशावतुन को आप कहेंगे मुब्तदा मौखर। विशावतुन मुब्तदा मौखर। तर्जुमा करें, क्या तर्जुमा किया आपने, तर्जुमा करें। पर्दा पड़ा होगा उनकी आंखों पर। नहीं, देखिए आपने तो मजा ही खत्म कर दिया। जब किसी चीज को मैंने मुकद्दम किया तो मेरे का तर्जुमा मुझे किसका चाहिए पहले। अगर मैंने इसको मुकद्दम किया है तो उसका कोई वजह है ना। उनकी आंखों पर बनाना चाह रहा हूँ, उनकी आंखों पर पर्दा है। उनकी आंखों के ऊपर या उनकी आंखों पर, गिशावतुन का क्या तर्जुमा करेंगे, पर्दा ही होता है। नहीं लेकिन मुझे बताएं गिशावतुन नकरा है क्या मार्फा है? यहाँ पे तो नकरा है ना, तो नकरा का तर्जुमा करें ना, आप तो मार्फा का तर्जुमा कर रहे हैं। कोई पर्दा है, एक पर्दा है, उनकी आंखों पर एक पर्दा है या उनकी आंखों पर कोई पर्दा है। तो आप देखें आपको मफहूम भी फिर उससे निकलता है। अला अब्सारिहिम आपने यहाँ मुकद्दम करके फोकस किस पे दिया, आंखों, अपने आंखों पे दिया। अगर ये होता अल गिशावतु अला अब्सारिहिम तो क्या तर्जुमा करते, पर्दा है उनकी आंखों पर, एक पर्दा है उनकी आंखों पर। लेकिन जब आप कहते हैं अला अब्सारिहिम गिशावतु तो क्या तर्जुमा करते हैं, उनकी आंखों पर एक पर्दा है, उनकी आंखों पे एक पर्दा है। तो वजन किस पे ज्यादा लगा आपको, फोकस किस पे ज्यादा मिला। तो मुकद्दम और मौखर का ये हमेशा ख्याल है। और कुरान मजीद में बहुत उस्लूब है, भरा पड़ा है कुरान मजीद इससे। कुरान मजीद में इतनी एग्जाम्पल की कोई हद नहीं है, बेइंतहा जगह पे आपको मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ फीहा, फीहा करें, क्या चीज है फीहा, फीहा उस, जी सर करें, घबराना नहीं सर, हमारे कप्तान ने कह दिया घबराना नहीं है। फीहा उसमें, यानी इसमें हा है मुन्नस में। हाँ फीहा का करें ना तर्जुमा सर, फीहा है क्या, फीहा बताइए ना मुझे। फी आपने कहा जा रहा, देखिए आप तरकीब साथ साथ करते रहे। मैंने आपसे कहा आपका असल ऑब्जेक्टिव अरबिक टू उर्दू जाना है, उर्दू तो अरबिक नहीं है। तो मैं अब आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ कुरान की आयतों पे चलूंगा ज्यादा। अब आपने जब आपके सामने मैं लिखूं तो आप उसकी अरबिक की एनालिसिस करने की कोशिश करें साथ साथ, ठीक है। जब भी आपके सामने कोई इस्म आए, आपने सबसे पहले कोई भी कलमा आए, आपने पहले तो ये देखना है कि ये मुफरद है कि मुरक्कब है। अगर मुफरद है तो कोई इशू नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे यहाँ कहता कि करें तो इसके एनालिसिस, आप सीधा सीधा कहते हैं वहीलुन मुब्तदा लिल मुतफ्फिफीन का आपको करना पड़ता है कि लाम को आप कहते हैं जारा और मुतफ्फिफीन को आप कहते हैं मजरूर, जारा मजरूर मिलके मुतालिक और मुतालिक को आप कहते हैं कायम मुकाम खबर, ठीक है। अब फीहा को आप इस तरह से करें, फी क्या है, जारा, हा क्या है जी इसमें, मजरूर, और जारा और मजरूर मिलके मुरक्कब है जारी, ठीक है जी। मैं आपसे कहता हूँ फी ये सर इस पे हा पे जबर आया हुआ है, इसका मतलब तो ये मजरूर कैसे हो गया, जोर से बोले। ये हा के ऊपर जब हा के ऊपर फतह है ना,
हाँ हाँ के ऊपर फतह है, बिल्कुल है। ये तो जर में तो नहीं है ना? बहुत जबरदस्त, बहुत। मुझे बताइए, हाँ आपको क्या लग रहा है, जमायर लग रहा है? जमायर का चार्ट याद नहीं है कि सर? जी जी। केड़ा वाला चार्ट सी? वो चार्ट मैंने भी कराना है, 5 मिनट आपने देने हैं मुझे आप लोगों ने। ये ये हालत कौन सी जमीर है सर? जर का जमायर है। जर का जमायर है ना सर? मोनस का जर का जमायर है ना? अच्छा अच्छा हु अच्छा अच्छा, हुमा ठीक हुम हा हुमा हुन्ना, सही। ठीक है। हाँ हुमा हुन्ना, तो ये हा है ना वो ठीक। वाला, वाहिद मोनस का है ना। फीहा सही है। फाकीहतुन, फीहा फाकीहतुन व रुम्मानुन। और फाकीहतुन व रुम्मानुन, तो वाव को मैंने कहा अतफ। अतफ से पहले वाली चीज क्या होती है सर? मातूफ इलैह। मातूफ, नहीं, अतफ से पहले मातूफ वाली अलैह और होती है उधर मातूफ इलैह। अतफ के बाद वाली क्या होती है? मातूफ। मातूफ। अब मुझे बताइए, मातूफ और मातूफ इलैह मिलके क्या बनेगा? जी सर, मातूफ और मातूफ इलैह मिलके क्या बने? चले मातूफ एक को एक बता दें तो बाकी तो खुद हो जाएगा। एक बता दें। तौसीफी, मरकब तौसीफी। मरकब तौसीफी कैसे बना? मातूफ मातूफ अलैह और ये वाव भी। मुब्तदा नहीं बनेगा? मुब्तदा बनेगा ना, नकरा आ रहा है, नकरा आ रहा है ना जी। अभी तो बताया आपको मैंने, नकरा आने की वजूहत क्या है। आप शुरू में देखें क्या आ रहा है, जार मजरूर आया ना पहले। उस नकरा इस्म से पहले क्या मिला आपको? अगर आपको कोई नकरा इस्म हालत रफा में मिलता है और उससे पहले जार मजरूर मिलता है, तो ये निशानी है कि ये जो इस्म आया रहा है हालत रफा में नकरा, वो क्या चीज है? वो मुब्तदा मुअख्खर है, मुब्तदा मुअख्खर है। मुब्तदा मुअख्खर की निशानी क्या है कि मुब्तदा मुअख्खर नकरा होगा, और मुब्तदा मुअख्खर की निशानी क्या है कि उससे पहले आपको हमेशा मुरक्कब जारी मिलेगा। तो मुब्तदा की नकरा होने की जो 3 वजूहात हैं, पहली वजूहत मैंने बताई कि मुदाफन क्या आता है, दूसरी वजूहत बनाई कि वो ऐसा जुमला हो सकता है जिसमें दुआ का मफहूम पाया जाए, और तीसरा मैंने आपको बताया कि नकरा उस सूरत में आ सकता है कि उससे पहले आपको जार मजरूर की सूरत में खबर मिलेगी, जिसको हम मुतालिक कहते हैं, जिसको हम मुतालिक खबर कहते हैं ना, कायम मुकाम खबर जिसको हम कहते हैं। तो जार मजरूर की सूरत में आपको कायम मुकाम खबर मिलेगी। ये मुब्तदा के नकरा में होने की तीसरी कंडीशन है। यानी मुब्तदा जो है वो मारफा होता है, लेकिन मुब्तदा नकरा बन के भी आ सकता है। टोटल उसकी 7 वजूहात हैं, मैंने सिर्फ आपके सामने 3 रखी हैं। एक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मुदाफ के हवाले से, 2 मैंने आपके सामने रखी, एक मैंने रखी कि जुमला ऐसा हो जिसमें दुआ का मफहूम पाया जाए, ऐसी सूरत में मुब्तदा नकरा आता है। दूसरी सूरत मैंने आपको बताई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरान मजीद में बेइंतहा इस्तेमाल है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, कि मुब्तदा को मौखर कर दिया जाए। मुब्तदा मौखर की निशानी क्या है? मुब्तदा मौखर की निशानी हमेशा याद रखिएगा कि आपको जब भी कोई ऐसा इस्म मिले जो नकरा हो, हालत रफा में हो, आपका गालिब गुमान ये होना चाहिए कि वो मुब्तदा मौखर है। उसकी कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगी कि इस इस्म से पहले आपको एक मुरक्कब जारी मिलेगा। तो ऐसी सूरत में आप उस मुरक्कब जारी को कायम मुकाम खबर मुकद्दम करके उस इस्म को जो आपको नकरा मिला, नकरा मिला, हालत रफा में मिला, उसको आप मुब्तदा मौखर कह देंगे। फीहा फाकिहतुन व रुम्मान, उसमें क्या है? उसमें मेवात है
اور انار ہیں. فاکیہ کس کو کہتے ہیں؟ فاکیہ ویسے کہتے ہیں جسے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. فاکیہ کے فکھن کہتے ہیں چہرے پہ مسکراہٹ آنے کو. فاکیہتن ایسے پھل جس کو کھانے سے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. ایک فریش قسم کا جب آپ لوگ کھاتے ہیں نا، جب سیب کھاتے ہیں تو کیسا آپ کے چہرے پہ کھلتا ہے، تھوڑی سی مسکراہٹ آتی ہے. تو ایسا پھل جس کو کھانے سے آپ کے چہرے پہ خوشی آ جائے. ایسا نہیں کہ جناب وہ کھا بھی لیا اور کچھ پتا بھی نہ چلا. تو یہ سر جی بنیادی چیزیں تھی کچھ. اس میں اگر کوئی سوال ہے تو ذرا مجھے پوچھیں. کوئی اتنا وہ چیز نہیں ہے، لیکن 2 پوائنٹ آج آپ کے سامنے جو مجھے مین رکھنے تھے اس کو ذہن میں رکھیں. یہ ساری چیزیں بھی آپ کی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. جو مین اصل 2 پوائنٹ ہے اس کو ذہن میں رکھیں. پہلی چیز، مرکب جاری نہ مبتدا بن کے آتا ہے نہ خبر بن کے آتا ہے. مبتدا تو بن ہی نہیں سکتا، مبتدا تو بن ہی نہیں سکتا، خبر بھی نہیں بنتا. لیکن اگر جملے میں خبر محذوف ہو، ایسی صورت میں آپ اس کو قائم مقام خبر بنا لیتے ہیں مرکب جاری. دوسرا پوائنٹ جو آپ کے سامنے تھا کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن مبتدا نکرہ بھی آ سکتا ہے. مبتدا نکرہ کی 2 وجوہات صرف سمجھنے. پہلی یہ کہ اگر ایسا جملہ ہو جس میں دعا کا مفہوم آتا ہے، دعا کا مفہوم ہے. قرآن مجید میں اسلوب ہے کم ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، 2 میں نے آپ کے سامنے اگزامپل دی. ایسی صورت میں مبتدا نکرہ آتا ہے. لیکن جو دوسرا بہت امپورٹنٹ ہے، جو قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے، بے انتہا استعمال ہوا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے مبتدا نکرہ ہونے کی؟ مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے. یہاں مبتدا مؤخر نہیں ہوا، یہاں بھی مبتدا مؤخر نہیں ہوا. اپنی جگہ پہ جو اس کا مقام ہے ابتدا میں آنا وہیں رہا، لیکن ان دونوں اس جگہ پہ مبتدا مؤخر ہو گیا. تو مبتدا کے نکرہ آنے کی ایک وجہ کیا ہے کہ مبتدا مؤخر ہو جائے. اور مبتدا مؤخر ہونے کی پہچان کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی اسم ملے، کیونکہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ مبتدا لازماً حالت رفع ہوگا. اگر وہ حالت رفع نہیں تو مبتدا ہو ہی نہیں سکتا. تو جب آپ کو کوئی ایسا اسم نظر آئے جو کہ حالت رفع میں ہو اور نکرہ ہو، تو آپ کا ایک غالب گمان ہو سکتا ہے کہ یہ والا اسم جو ہے یہ کیا چیز ہے، یہ مبتدا مؤخر ہو سکتا ہے. کنفرمیشن کیسے ملے گی؟ اس سے پہلے والے اسم سے ملے گی. اس سے پہلے والا کلمہ میں دیکھیں دوبارہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ آگے جب پڑھیں گے تو آپ کو مبتدا اسی طرح سے اسم ملے گا حالت نکرہ میں اور اپنا کیا کہتے ہیں رفع. لیکن اس سے پہلے آپ کو پھر جو ہے وہ مرکب جاری نہیں کوئی اور چیز ملے گی. تو پوائنٹ نوٹ کریں، جو اصل پوائنٹ ہے وہ نوٹ کریں. مبتدا نکرہ ہونے کی جو ایک بہت بڑی امپورٹنٹ وجہ ہے وہ کیا ہے کہ اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. اور مبتدا مؤخر کو پہچاننے کی ریزن کیا ہے وہ نوٹ کریں اچھی طرح سے کہ جب آپ کو کوئی ایسا اسم نظر آئے کہ جو نکرہ ہو حالت رفع میں ہو، تو آپ کا غالب گمان یہ ہوگا کہ وہ مبتدا ہو سکتا ہے. پکڑیں گے کیسے؟ جب آپ اس سے پہلے والی چیز کو دیکھیں گے. اس سے پہلے والی چیز ہم لازماً جار مجرور یعنی مرکب جاری ہو. اگر اس سے پہلے مرکب جاری ہوگی تو آپ کہیں گے یہ مرکب جاری جو ہے یہ قائم مقام خبر ہے. اور پھر دوسرا والا جو اسم جو آپ نے نکرہ حالت رفع میں دیکھا ہے اس کو آپ کہیں گے کہ وہ مبتدا مؤخر ہے. یہ 2 پوائنٹ تھے آپ کے آج کی اس کلاس کے حوالے سے. جو کچھ اب تک پڑھا ہے سر اس کو ایک آدھ دفعہ ریوائز کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی کی اگلی کلاس میں آپ کے ساتھ قرآن کی آیات ہم کریں گے کچھ اور اس کی انالیسس کریں گے. اسی طرح سے آپ کے ساتھ آیات رکھیں گے، اسی طرح سے آپ نے اس کی انالیسس کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس کے ترجمے کریں گے تاکہ آپ کو اس کی تھوڑی سی فیل آپ کی پڑھنا شروع ہو. پھر ہم نیکسٹ پارٹ میں چلیں گے کہ جملے کے اندر تاکید کیسے پیدا ہوتی ہے، دوسری چیزیں کیسے آتی ہیں. لیکن آپ کا اسم کا جو فرسٹ بیسک پارٹ تھا وہ آج یہاں اختتام کرتے ہیں. اب اس کے 2 پارٹ اور رہ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس کے اندر ہم قرآن کی آیت کریں گے. اس کے نیکسٹ کلاس سے پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر جائیں گے. جی سر ٹیپ ذرا جلدی بھیجا دیں تاکہ اس کو دوبارہ سن سکیں انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. جی سر کچھ آپ کہہ رہے ہیں؟ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے میری. جی سر. جب بھی آپ ایک نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں اگر اس کی ہیڈنگ پہلے بتا دیا کریں